Dear students, I welcome you to this first video lesson on the topic on the subject of information technology for class 9th. As we have discussed in the earlier video lesson that your syllabus has been divided into two parts, part A and part B, whereas the part A is concerned with the employability skills, the skills that you require when you become an employee in an organization, and the second part is the main subject content area. This employability skill portion is common in all the subjects that have been introduced by CBSE under skill education scheme, and it is very important for our daily life also. Okay, so we will be starting with employability skills. If you see the contents of this unit, the name of the unit is communication skills, in which we will be dealing with various sessions covering the types of communication, and many more things will be covered related to communication. So we will be starting with the session number 1, introduction to communication. Okay, so dear students, please try to listen to this video lesson carefully, and the notes regarding this lesson will be provided you externally. So you just focus on understanding the concept, not on noting down the points. Okay, so please try to understand the concepts. The concepts will be explained to you in Hindi also, so you can have a better understanding of the topics, and the notes that you have to write in your notebook will be provided you externally within link. Okay, so try to focus on learning of concepts. Okay, so let's start with the introduction to communication skills. Communication skills are those which are needed to speak and write properly. A person who is able to speak appropriately whilst maintaining eye contact with the audience, uses varied vocabulary and articulate speech to suit the need of audience, is generally said to be an effective speaker. तो आपने देखा होगा कि जो कई स्पीकर बोलते सभी हैं, लेकिन कुछ स्पीकर्स ऐसे होते हैं जिनकी बातों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनकी स्किल्स ऐसी होती हैं जिससे कि वो आपको ज़्यादा पसंद आते हैं, जिससे उनकी बातें आपको ज़्यादा समझ में आती हैं. सिमिलरली, an effective writer should be able to use written words in various styles and techniques to communicate the message and ideas to the reader. तो आप जो किताबें पढ़ते हैं उसमें अगर आपको लेखक की बात ही समझ में नहीं आई तो वो एक अच्छा लेखक नहीं माना जाएगा. तो उसने अपने शब्दों का ऐसा प्रयोग करना है कि आपको समझ में आ जाए. One should have the ability to listen carefully and write and speak clearly in any situation. तो ये चीज़ें आपको बचपन से ही बताई जाती हैं कि आपको लिखना, पढ़ना और बोलना, ये 3 चीज़ें भाषा से संबंधित होती हैं. ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए. Therefore, good reading, writing, speaking and listening skills are essential for effective communication. तो आप जब भी कम्युनिकेट करेंगे, जब भी आप वार्ता करेंगे, तो उसके लिए आपको ये, अगर आप इन चीज़ों में अच्छे हैं, किसकी चीज़ों में? पढ़ने में, लिखने में, बोलने में और सुनने में, इस चारों चीज़ों में, ये जो भाषा के अंग हैं, इन चारों चीज़ों में अगर आप अच्छे हैं, तभी आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, एक जिसका महत्व हो उस वार्ता का, उसको प्राप्त कर पाएंगे. इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी अचीव इफ़ यू आर गुड एट ऑल दीज 4 थिंग्स. ओके, as a student you may study any language, but it is important that you are able to read, write, speak and listen well in order to communicate properly. अगर आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तो आप सही से समझेंगे नहीं, सही समझेंगे नहीं तो सही लिख नहीं पाएंगे. सही लिख नहीं पाएंगे तो आप किसी और को वो आपकी चीज़ पढ़ेगा तो वो भी आपको गलत समझेगा. इसलिए ये चारों चीज़ें आपको आनी चाहिए. Speaking more than one language can help you to communicate well with more people around the world. अगर आप ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और भी अगर आप विदेशी लैंग्वेज और भी सीखते हैं, तो आप ज़्यादा लोगों से बातचीत करने में सफल हो सकते हैं. Okay? So the origin of the word communication is from a Latin word
called communicare, means to share. Okay, so what we do in communication, we share our feelings, our thoughts, our wishes that we share with others. Okay, you can see the communication is the sharing of information between two or more individuals or within a group to reach a common understanding. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप दोनों, जो सुनने वाला है और सुनाने वाला है, दोनों एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहुँचे, तभी उसको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाएगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तभी इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कहा जाएगा। तो हम दोनों, आपको अभी इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं अपने समझाने के माध्यम से अगर आपको उस लेवल पे ले आऊँ कि आप, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, आप सीख जाएं, आप समझ जाएं, तो दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड शेयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज विल हेल्प यू इन ऑल योर रिलेशनशिप। कहीं पे भी आप जाएंगे, अगर आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे से अपनी बातें कह सकते हैं, समझा सकते हैं, तो आपको हर जगह वो चीज़ काम आएगी। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, वाई दे आर इम्पोर्टेंट? सो द फर्स्ट पॉइंट इज इन्फॉर्म। यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन टू समवन। आप किसी को बताना चाह रहे हैं कुछ, आप अपने दोस्त को कुछ समझाना चाह रहे हैं, उसके समझ में नहीं आया, उसने आपसे पूछा, तो अगर आपको उसको अच्छे से समझाना नहीं आएगा, चाहे वो आपको बिल्कुल वो पॉइंट समझ में आता है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से नहीं बता पाए तो वो नहीं समझ पाएगा। तो जब भी आप अपनी कोई चीज़, जो चीज़ आप जानते हैं, वो किसी दूसरे को बताना चाह रहे हैं, आप उसको शेयर करना चाह रहे हैं, वो चीज़ आप उसको देना चाह रहे हैं, तो वही उसमें आपको ये चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती है। जैसे आप एग्जामिनेशन का टाइम टेबल अपने दोस्त को बताएं और कुछ आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने गलत नोट कर दिया, पता चला, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन देने का जरिया है, वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स काम में आती है। इन्फ्लुएंस, यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन एन इनडायरेक्ट बट यूजुअली इंपॉर्टेंट वे। आपने देखा हो, कई पार्टियां जो होती हैं उन्हें अपने रैलियां आयोजित करती हैं, वहाँ पे वो ऐसे ऐसे वक्ताओं को बुलाते हैं जो कि सामने वाले का माइंड डाइवर्ट कर देते, माइंड बदल सकते हैं अपने बोलने के द्वारा। तो वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप अपनी शक्ति से, अपनी इस वार्ता की शक्ति से वो आपको प्रभावित करते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाएं, उनकी बातों को मान लें। सो इन्फ्लुएंस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट for which we should have good communication skills. Negotiation with a shopkeeper to reduce the price. आपने देखा होगा, कई लोग जो हैं बाजार में जाते हैं, वो जो दुकानदार जिस प्राइस पे दे रहा होता है उसके आधे प्राइस पे वो चीज़ ले आते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते। तो ये स्किल्स हैं सब चीज़, नेगोशिएशन स्किल्स। ओके, किसी को, आपके दोस्त को एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो रहा है, उसको रिलीफ कैसे कराया जाए, तो वो चीज़ें, ये सब इन्फ्लुएंसिंग के जो मेथड्स हैं, उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, तब आप उसको समझा पाओगे। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, दो लोग होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है और एक जो है उस इन्फॉर्मेशन को ले रहा है। समवन इज आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन एंड अदर वन इज गिविंग द इन्फॉर्मेशन, एंड द गिवन इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द फर्स्ट पर्सन। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक पूछ रहा होता है, दूसरा बता रहा होता है, फिर वो जो बताएगा कि सामने वाला उसको समझेगा, फिर हो सकता है वो समझने के बाद उससे वापस कुछ क्वेश्चंस पूछे जिससे कि उसको वो चीज़ क्लियर हो सके। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का एक और मोटिव है टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। आपको भूख लगी है, आपको दर्द हो रहा है, तो ये चीज़ें तभी आप बता सकते हैं व्हेन यू विल कम्युनिकेट। ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स इज अ हेल्दी वे टू एक्सप्रेस देम। ओके, तो आपको कुछ भी चीज़ हो रही है तो आप उसको, फीलिंग्स को आप अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, तभी उनके समझ में आएगा। तो एक्सप्रेस फीलिंग्स, सो दिस इज ऑल्सो, दिस इज द एरिया वेयर वी रिक्वायर our communication skills. Now, after discussing communication,
लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि इन कम्युनिकेशन वी हैव अ सेंडर, वी हैव अ रिसीवर, in between we have a channel through which we communicate. Okay, so communication is a two-way exchange of information. दोनों साइड से होता है, गिविंग एंड रिसीविंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एग्जाम्पल्स ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, देन रीडिंग एंड लिसनिंग टू समवन आर एग्जाम्पल ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। आपने बोला, दूसरे ने सुना, तो आप देने वाले हो गए, सामने सुनने वाला जो है वो लेने वाला हो गया, और जो बीच में मीडियम यूज हो रहा है वो आपका चैनल हो गया। Okay. Next we have perspectives in communication. Perspectives are ideas, views or fixed ways of thinking, and these sometimes affect our communication. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में अपने मन में एक अवधारणा बना लेते हैं कि ये यही होगा, ऐसा ही होगा, फिर हमें उसकी बात वो चीज़ समझ में नहीं आती, या उसकी हर बात, अच्छी बात भी हमें बुरी लगती है। किसी को आप अपना दोस्त मान लेते हैं तो उसकी आपको हर बात अच्छी लगती है, चाहे वो बुरा भी कर रहा हो, लेकिन कई किसी को अगर आप अपना दोस्त नहीं मानते हैं तो उसकी अच्छी बात भी आपको सही नहीं लगती है। तो इससे कम्युनिकेशन में फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। सो देयर आर सम बैरियर्स दैट हिंडर आवर अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कम्युनिकेशन? लेट अस डिस्कस देम. These are the factors that affect communication. First one is language. So if you are using unfamiliar language, or if you are using incorrect words and you do not have a good command over the language, then you can get into a position where you can communicate wrong or incorrectly. अगर आपने ऐसे शब्दों का यूज़ कर दिया जो सही नहीं है, या आपको उस लैंग्वेज की पूरी समझ नहीं है, आपने कुछ और बोल दिया, आप बोलना समझाना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन आपने शब्दों का चुनाव अगर गलत किया तो सामने वाले को उससे गलत चीज़ समझ में आ सकती है। ओके, सो ये कहाँ पे ज़्यादा होता है? जहाँ पे दो लोग अलग अलग लैंग्वेज एरिया को बिलोंग करते हैं। तो आप जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, सामने वाले को वो चीज़ समझ में नहीं आई। जैसे एक इंडियन किसी चाइनीज़ को हिंदी में समझाएगा तो दैट पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज ही इज नॉट नोइंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ हिंदी। ओके, सो लैंग्वेज इज द फर्स्ट बैरियर, फर्स्ट फैक्टर। विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन इज द ब्रेन्स एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आईज। हम अपनी आंखों के द्वारा जो चीज़ देख रहे हैं, हम उसका एक पर्सपेक्टिव, अपने मन में एक दृष्टिकोण बना लेते हैं। For example, completing partially drawn pictures with visual perception, whereas they may be something else. आधी पिक्चर आपको दिखाई गई, फिर आपका दिमाग अपने आप उसको आधा कंप्लीट पूरा कर लेता है, तो उससे हो सकता है कि वो असली में जो चीज़ होनी चाहिए थी वो आपने नहीं कैलकुलेट करी, आपके दिमाग ने उसको कुछ और परसीव किया, इसकी वजह से आपने उसको मिस इंटरप्रेट किया हो, ऐसा हो सकता है। सो विजुअल परसेप्शन, जिसमें अपना आधी पिक्चर देखी हो, आधी ना देखी हो, तो आप उसके, मान लिया आप एक मूवी देख रहे हो तो आधी मूवी आपने देखी, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ उसका क्या हुआ होगा, तो आपका माइंड जो परसीव करेगा उसके हिसाब से वो आपको उसका रिजल्ट बताएगा, बट इट कैन बी डिफरेंट। फिर पास्ट एक्सपीरियंस, किसी चीज़ से आपको बुरे अनुभव हों, कि मान लिया आपने किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदा हो या मोबाइल खरीदा हो और आपको उससे अच्छे अनुभव ना हुए हों, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस भी आपके कम्युनिकेशन में या आपके फ्यूचर डीलिंग्स में आपको इफेक्ट करता है। लेटिंग आवर अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेटिंग क्लियरली। ठीक, जैसे मान लिया आपने किसी दुकानदार ने आपको कोई चीज़ महंगी दी, तो आपका एक वो दिमाग में एक पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपका मन बन जाता है, नहीं इसकी दुकान से मत लो, ये हमेशा महंगा देता है, तो आपका एक पर्सपेक्टिव बन जाता है ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, प्रिजुडिस, फिक्स्ड आइडियाज, आपने पहले से अपने मन में सोच रखा है, नहीं ये तो ऐसा ही होगा। जैसे नो वन इन माई क्लास लाइक्स मी, अगर आप सोच लिया हमने कि नहीं कोई मुझे पसंद नहीं करता, ओके, तो ये फिर क्या होगा कि इट विल स्टॉप दैट स्टूडेंट फ्रॉम कम्युनिकेटिंग ओपनली इन द क्लास, फिर वो किसी से बात नहीं करेगा, तो वो प्रिजुडिस है उसका, ऐसा है नहीं एक्चुअली में, लेकिन उसने मन में ऐसा सोच लिया है, अपने मन में एक अवधारणा बना ली।
then feelings, our feelings and emotions such as lack of interest or not trusting the other persons affect communication. I am not feeling well, therefore I don't want to talk. तो आपकी फीलिंग्स, अगर आप बीमार हैं, कोई आपसे कहे चलो भाई कुछ बातचीत करते हैं, बढ़िया गाना सुना दो, तो आप नहीं सुनाओगे. आप उसको कहो कहानी सुना दो, नहीं सुना सकता, क्योंकि उसकी अभी फीलिंग्स उस मेंटल स्टेट में, फिजिकल स्टेट में नहीं है कि वो आपसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए. ओके. इन्वायरमेंट, आसपास का एरिया अगर नॉइजी है, बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है, अब पता चल रहा है आप किसी शादी में गए, वहाँ डीजे बज रहा है और आपका दोस्त आपसे पूछे यार वो एक मैं कल सर ने मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कराया था, वो कैसे सॉल्व होगा, तो यू कैन नॉट कम्युनिकेट बिकॉज द इन्वायरमेंट इज नॉट सूटिंग दैट डिस्कशन. ओके. सो नॉइज और डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग मे मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट. तो आसपास शोर या कुछ अलग टाइप का सराउंडिंग जो उसको सूट नहीं कर रहा है, एक मूवी चल रही है वहाँ पे आप अगर अपनी क्लासेस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, सो द एनवायरनमेंट इज नॉट सूटिंग, सो इट विल इफेक्ट योर कम्युनिकेशन. देन पर्सनल फैक्टर्स, आपकी फीलिंग, आपकी हैबिट्स, आपकी सोचने का नज़रिया, ये सब चीज़ें जो है कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं. अगर आपको कॉन्फिडेंस उतना नहीं है और आपको आता बहुत अच्छा है, आपसे कहा कि चलिए स्टेज में जाके सुबह मॉर्निंग प्रेयर में एक कविता सुनाइए, आपने बहुत अच्छी कविता लिखी है, लेकिन आप उस अपने पर्सनल फैक्टर की वजह से, आपके अंदर की वो जो फैक्टर है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म. सो आप वहाँ जाके आपके पाँव काँपने लगेंगे, मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, पसीना आ जाएगा. तो ये सब चीज़ें आपका जो पर्सनल फैक्टर हैं, या आप बीमार हो सकते हैं, ये कई चीज़ें हो सकती हैं, तो वो चीज़ भी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है. कल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. साइंस विच हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर्स, ओके, सच एज शोइंग अ थंब मे मीन गुड जॉब डन फॉर सम पीपल बट मे बी इंसल्टिंग टू अदर्स. हम कहते हैं ना अंगूठा दिखाना, तो इन अदर हम और दूसरे उसमें हम क्या मानते हैं, अंगूठा को हम थम्स अप कहते हैं इंग्लिश में, दैट मीन्स वेरी गुड. बट हिंदी में हम अगर कहें तो अंगूठा दिखाना, थम्स अप मीन्स अंगूठा दिखाना. तो दोनों लैंग्वेजेस में क्या है, दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है. अंगूठा दिखाना मतलब नकार देना, ओके, जबकि इंग्लिश में वन विल से थम्स अप, दैट मीन्स दैट्स गुड. ओके. सो कल्चर वाइज भी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें जो हैं, सेम चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट मीनिंग जनरेट कर सकती हैं. तो ये सब चीज़ें आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं. So you have studied these many things. So what is an effective communication? This will be the question in your mind कि अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा संभाषण है क्या. So effective communication can happen if we follow the basic principle of professional communication. Okay. So the professional communication skills are defined as 7 C's. इसको हम कहते हैं 7 C's of effective communication. This will be a question in your coming examination. What are the 7 C's of a communication? Clear, concise, concrete, correct, coherent, complete and courteous. Okay, so these are the 7 C's of effective communication. So if your communication has these 7 C's, then your communication will be treated as effective communication. Okay, so let us discuss these points one by one. So this figure shows you the 7 C's of effective communication. Okay, the first one is clear. जो भी आप कह रहे हैं वो साफ साफ कहें, घुमा फिरा के ना कहें. Be clear about what you want to say. So these are one line definition for these 7 C's. If it comes in examination, you should write the points and just one line in front of each of the points. Okay, so clear means whatever you want to say it clearly. Concise means यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज़ नीडेड. जितना कहना हो उतना ही कहा जाए, घुमा फिरा के उसके चारों ओर बीटिंग अबाउट द बुश के उधर उधर की कहानियाँ अपने मन से इधर उधर की जोड़नी नहीं है. जो मेन पॉइंट हैं जो कवर करने हैं केवल वही कहे जाएं. कंक्रीट, यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. जो सही है वही यूज़ करें, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करें, क्योंकि वर्ड्स की जो है इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है. तो जहाँ पे जो वर्ड सूटेबल है वही वर्ड यूज़ किया जाए. यू करेक्ट, ओके, करेक्ट मीन्स यूज़ करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेज एंड ग्रामर. जो भी आप बोल रहे हैं वो ग्रामेटिकली, फोनेटिकली करेक्ट होना चाहिए. आप उसका उच्चारण सही करें, उसको अगर लिख रहे हैं तो सही लिखें, बोल रहे हैं तो सही बोलें. ठीक है, ये चीज़ें जो एक लैंग्वेज की 3 चीज़ें मेन होती हैं,
सही स्पेलिंग होनी चाहिए, लैंग्वेज सही होनी चाहिए, ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए। कोहेरेंट, योर वर्ड शुड मेक सेंस एंड शुड रिलेट टू द मेन टॉपिक। जो आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं वो जिस चीज़ को आप बता रहे हैं उनसे रिलेट करनी चाहिए। ये नहीं कि आप उधर उधर की बातें कर दी, जो आप टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो पॉइंट्स होने चाहिए। कंप्लीट, योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन। आधी अधूरी बात नहीं करनी है, पूरी बात बतानी है। जो बात कहनी है उसको कंसाइज कहेंगे तो वो कंप्लीट भी कर पाएंगे। आप पूरी कहानी बताने लग जाएंगे उसके आगे पीछे की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर मैसेज। सो यू मस्ट कंप्लीट योर मैसेज। आधी अधूरी बात भी नहीं बतानी। कर्टियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। जब आप बोल रहे हैं तो किसी को डांटते हुए नहीं बोलना है, ठीक है, उसको समझाते हुए, उसको प्यार से समझाते हुए रिस्पेक्टफुल होना है। अगर आप छोटे बड़े जो भी हैं उनके साथ उनको उस हिसाब से रिस्पेक्ट देते हुए फ्रेंडली तरीके से और सही ऑनेस्ट वे में बोलना है, डिसऑनेस्टी नहीं दिखानी है। सो दीज आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपके कम्युनिकेशन में ये 7 पॉइंट हैं, देन यूर कम्युनिकेशन विल बी ट्रीटेड एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अलग अलग तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। द 3 आर नॉन वर्बल, वर्बल एंड विजुअल। नॉन वर्बल मीन्स बिना बोले हुए हाथों के एक्शंस के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल। In verbal communication, you use words, and in visual communication, you use pictures, logos, graphs, etc. Okay, I think you know about all these 3 communication methods. Students, in this lesson, we have covered the basics of communication, the factors that hinder the effective communication, and the 7 C's of communication that make a communication effective. Okay, so in this lesson we will only cover up to this point, and in the upcoming lesson we will be covering the types of communication that we have just introduced. Those are verbal, non-verbal and visual communication. Okay, so this is the first lesson in this video lesson learning series. So as it is a new subject for you, try to repeat this video again and again until you are aware about all the concepts. And as we have discussed the things with examples that are related to you, so I think I am able to communicate the things to you, and you can check your progress by answering this multiple choice questions on your own. And if you are finding it difficult, please revise this video again and you will be able to answer the questions correctly. Okay, so this being an introductory lesson, we have made it short. And in the next video lesson, we will be having the discussion about the 3 types of communication. It will be a very interesting lesson for you. So stay tuned to our channel for the next lesson, and we will meet in the next video lesson.